شرائط کی تکمیل کے لیے منی بجٹ کی منظوری، حکومت کے لیے چیلنج، صدر مملکت سے وزیر خزانہ کی ملاقات، عالمی مالیاتی ادارے سے مذاکرات پر گفتگو۔ اسحاق ڈار نے کہا حکومت آرڈیننس جاری کر کے ٹیکسز کے ذریعے اضافی ریونیو اکٹھا کرنا چاہتی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ صدر مملکت نے آرڈیننس کی مدد سے منی بجٹ لانے پر اعتراض اٹھا دیا، کہا کہ اہم معاملے پر پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا زیادہ مناسب ہوگا، پارلیمنٹ کا فوری سیشن بلا کر بل کو قانون بنایا جائے۔ حکومت کی آج ہی آرڈیننس جاری کرنے کی منی بجٹ نافذ کرنے کی کوشش۔ صدر عارف الوی کے اعتراضات کے بعد حکومتی ٹیم کا دیگر آپشنز پر غور۔ حکومت کا موقف ہے پارلیمنٹ میں بل کی منظوری میں زیادہ وقت درکار ہوگا۔ خدشہ ہے مشترکہ اجلاس ختم کیا تو صدر مملکت دوبارہ اجلاس نہیں بلائیں گے۔ ایک شخص کو صادق اور امین قرار دینے کے لیے انہوں نے سب کو گندا کیا۔ ثاقب نثار، وہ ڈیم والے بابا جی، ان کو ڈھونڈ رہی ہوں کہ آج ان کو میں پوچھوں کہ آپ نے اس شخص کو صداقت اور امانت کا سرٹیفکیٹ دیا، آپ کو خیال نہیں آیا کہ آپ اس ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ مریم نواز کو سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی تلاش، کہتی ہیں ایک شخص نے صادق اور امین قرار دینے کے لیے سب کو گندا کیا۔ ڈیم والے بابا نے اس شخص کو صداقت کا سرٹیفکیٹ دیا۔ آج میں ڈیم والے بابا جی کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ چیئرمین پی ٹی آئی پر نام لیے بغیر وار، کہا رجیم چینج کے بیانیے سے امریکہ کو باعزت بری کر دیا۔ آج کہتا ہے امریکہ نے نہیں، قمر جاوید باجوہ نے سازش کی۔ قمر باجوہ سپر کنگ تھے تو کیا آپ ملازم تھے؟ آپ عدلیہ کے گھوڑے پر سوار ہو کر آنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کو کوئی نہ کوئی وثاقی چاہیے ہوتی ہے۔ جیبیں آپ نے بھری، چوریاں آپ نے کی اور جیلیں قوم کے بچے بھرے۔ خود تو ذہنی مریض تھے، قوم کو بھی ذہنی مریض بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ صرف ورکرز نہیں، اسد عمر جیسے، فواد چودھری، حماد اظہر، شاہ محمود قریشی، بڑے سے بڑے لیڈر کو بھی گرفتاری دینے کے لیے تیار ہیں۔ گھسیٹ کر اس امپورٹڈ گورنمنٹ کو ہم نے بیلٹ باکس تک لے کر جانا ہے۔ ایک آئینی ماہر نے تو کل یہ کہا چیف الیکشن کمشنر کی گرفتاری بنتی ہے۔ پی ٹی آئی کی جیل بھرو تحریک کی تیاری مکمل، 24 گھنٹے کے نوٹس پر تحریک شروع کرنے کا اعلان۔ اسد عمر کہتے ہیں کہ ملک میں آئینی بحران پیدا ہو چکا، الیکشن کمیشن آئینی ذمہ داری ادا نہیں کر رہا۔ قانونی ماہر کہہ چکے چیف الیکشن کمشنر کی گرفتاری بنتی ہے، آئین بچانے کے لیے تیار ہیں۔ جیل بھرو تحریک میں سب بڑے رہنما گرفتاری دیں گے، عدلیہ جمہوریت کا قتل نہیں ہونے دیں گے۔ فواد چودھری نے کہا کہ منظم سازش کے تحت ججز کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے، جیل بھرو تحریک ایک دن کے نوٹس پر شروع ہو سکتی ہے۔ حکومت میں آنے کے بعد شہباز شریف کے خلاف گواہ مکرنے لگے۔ آشیانہ اسکینڈل میں وعدہ معاف گواہ اسرار سعید اپنے بیان سے منہرے۔ احتساب عدالت کی گزشتہ سماعت کا تحریری فیصلہ جاری۔ ایل ڈی اے کے چیف انجینئر اسرار سعید پر شہباز شریف کے وکیل کی جرح۔ اسرار سعید نے کہا نیب حکام کے جبر اور دباؤ سے شہباز شریف کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے پر مجبور کیا۔ سیری کے دوران مختلف حربوں سے دباؤ ڈالا، دھمکیاں دیں۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں عمران دور میں سیاسی مخالفین کے خلاف جھوٹے کیس بنائے گئے۔ عمران خان کی اصلیت آئے روز عوام کے سامنے بے نقاب ہو رہی ہے۔ یہ کوئی بات ہے یار، آپ لیڈر کے سامنے کھڑے ہی نہ ہو کہ نہیں سر یہ گل نہیں کرنی اچھی خوشی سے سارے لالچی ہو، ٹکٹ مل جائے، چاپلوسیاں کر لیے، بوڑیاں نو ہاتھ لا لیے کہ ایم ایل اے بن جائیے اپنے پنڈ دے، تو کی فائدہ ایم ایل اے بننے کا یار۔ چاپلوس کیوں کہا؟ کیپٹن صفدر ڈی کی رہنماؤں کے نشانے پر ڈی کی قیادت پر پارٹی رہنماؤں کا کیپٹن صفدر کے خلاف کارروائی کے لیے دباؤ۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سینئر رہنماؤں نے نواز شریف، مریم نواز سے ناراضی کا اظہار کیا۔ کیپٹن صفدر کو شو کاز کرنے، پارٹی ٹکٹ نہ دینے کا مشورہ۔ رہنماؤں کا کہنا ہے کہ کیپٹن صفدر سے جواب طلبی ہونی چاہیے، ان کے انٹرویو سے نون لیگ کے بیانیے کو نقصان پہنچا۔ دباؤ ڈالنے والوں میں لندن جا کر نواز شریف سے مشاورت کرنے والے شامل۔ کیپٹن صفدر نے اے آر وائی نیوز کو انٹرویو میں پارٹی رہنماؤں کو چاپلوس کہہ کر آئینہ دکھایا تھا۔ پی ایس
PSL 8 के मैचेस जियो सुपर को ये नशर करने से रोक दिया है। सिंध हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म, जियो सुपर को HBL PSL के मैच दिखाने से रोक दिया। फरीकैन की दरख्वास्तों पर 17 फरवरी के लिए नोटिस जारी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मैचेस दिखाने के लिए PTV, AIY और 10 स्पोर्ट्स से मोहलत दिया था। 13 फरवरी को जियो सुपर ने अचानक PSL मैच बराह रास्त दिखाना शुरू कर दिया। बैरिस्टर अयान मेमन कहते हैं, अदालती फैसले के बाद जियो सुपर पर HBL PSL के मैचेस नहीं दिखा सकता। मैचेस दिखाए तो तौहीन अदालत होगी। AIY और PTV ने तारीख की सबसे बड़ी बोली के जरिए PSL 8 के राइट्स हासिल किए थे। जियो बोली हार गया था। Willie, only 2 men out. Here's a big shout. Going up. Yep. So, what do you think on it? And is it a little lick onto the stump? Oh, and he's very good with the bottom hand. He decides to go straighter. Has he faceted? You betcha. HBL PSL 8 का हाई वोल्टेज टाकरा नासर स्टेडियम में कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी मद्दे मुकाबिल। मीर हमजा ने पहले ही ओवर में मोहम्मद हारिस को LBW किया। साइम अयूब भी हमजा के हाथों रन आउट। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम और दीगर बल्लेबाजों की इनिंग को संभालने की कोशिश। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस देखिए A स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। हुकूमत ज़र मुबादला न होने के मसले से दो चार एक और मुश्किल आन पड़ी। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की दर्जाबंदी खतरनाक ममालिक में कर दी। पाकिस्तान की गैर मुल्की डिफॉल्ट रेटिंग 2 दर्जे कम करके -3C कर दी। फिच का कहना है ज़र मुबादला में कमी का मसला जारी रहेगा। IMF से डॉलर मिल भी गए तो पाकिस्तान को इजाफी $5 अरब दरकार होंगे। करंट अकाउंट खसारा भी बढ़ेगा। मुर्गी 650 हो गई है। गरीब मर गया। गरीब मर जाए ना खाए ना, हम किराए में रहते हैं, किराया भरेंगे, हम अपनी हाथली बनाए बच्चों को दे। मुल्क में महंगाई का तूफान, मुर्गी के गोश्त की कीमत को पर लग गए। कराची में मुर्गी का गोश्त 750 और लाहौर में 650 तक पहुंच गया। मुर्गी खाना गरीब के लिए नामुमकिन हो गया। शहरियों की दुहाई कहते हैं, मौजूदा हुकूमत ने सस्ता मुर्गी का गोश्त भी हमसे छीन लिया। हुक्मरानों को आवाम की फिक्र नहीं, उनकी अपनी मौजें लगी हुई हैं। आवाम ने बिजली गैस की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। सारिफीन हुकूमत पर बरस पड़े, कहते हैं अखराजात पहले ही बहुत ज्यादा हैं, खुदारा रहम करें, गरीबों के चूल्हे ठंडे पड़ जाएंगे। हुकूमत ने गुज़श्ता रोज 1 जनवरी से गैस की कीमतें बढ़ाने का ऐलान किया था। पीपल्स पार्टी का ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला। चेयरमैन बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में उसूली फैसला किया गया। बाज़ाबता ऐलान पार्टी की क़यादत करेगी। इजलास में फैसले से मुताल्लिक PP उम्मीदवारों को एतमाद में लिया गया। ज़राए ने बताया, इजलास में पीपल्स पार्टी के रहनुमा वाज़ेह तक़सीम नजर आई। सीनियर रहनुमा ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने के मुखालिफ थे। कई रहनुमाओं ने इलेक्शन लड़ने की हिमायत की। पंजाब में इलेक्शन किस तारीख को होंगे? गवर्नर हाउस में मुशावरती इजलास तारीख का तयन किए बगैर खत्म। फैसले की तशरीह और वजाहत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का कहना था, अफवाज पाकिस्तान महकमा तालीम, पुलिस और अदलिया इंतखाबात के इनेकाद के लिए अमला देने से इनकार कर चुकी है। इन हालात में इलेक्शन कमीशन अकेले इंतखाबात नहीं करा सकता। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आता है, मेंबरान बहाल होते हैं, वो ताला लगा के घर भाग जाते हैं। इनको कहें भागना छोड़ें, मैदान में आए, लोगों को फेस करें, आए मैदान में, आपको पता चलेगा कि दूध का दूध और पानी का पानी किस तरह होता है। ईवान बाला में इलेक्शन की तारीख की गूंज। सेनेटर शहजाद वसीम का कहना था, एक बड़ी जमात को दीवार के साथ लगाया हुआ है। आइन के तहत चलना है तो इलेक्शन करवाएं। अदालत कहती है इलेक्शन करवाएं, जब इलेक्शन की बात होती है तो ये भाग जाते हैं। वजीर कानून का जवाब, कहा 8 महीने लॉजेस में बैठकर आ जाएंगे तो कैसे चलेगा।
इस्तीफे कबूल हुए तो आपने रोना शुरू कर दिया। अपने गिरबानों में झांके और अपना दामन देखें। अदालत इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन को अहकामात जारी कर चुकी है। मेरे सब अहकामात माने जाते हैं। 90 दिन इंतजार करूंगा। अमल दरामद नहीं होगा तो फिर देखूंगा। आपस में लड़ना नहीं है। गवर्नर एक ओहदा है, उसकी इज्जत करनी है, वो मेरी इज्जत करते हैं। अभी कुछ नहीं हुआ, हम भी यहीं बैठे हैं। घबराने की बात नहीं। जिस दिन कोई चूं चां करेगा मैं देख लूंगा। जस्टिस जवाद हसन के रिमार्क्स। लाहौर हाई कोर्ट ने सदर को पंजाब में इलेक्शन की तारीख के लिए अहकामात देने के लिए दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख के लिए सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त की जल्द समाअत का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट में नायब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। अदालती कार्रवाई से कुछ गलत मालूमात मंसूख की गई। जो रिपोर्ट हुआ वो न सिर्फ सियासत सबात से हटकर था बल्कि जानिबदाराना भी था। तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा कर रहा हूँ। मीडिया के दोस्तों को अदालत की तरफ से रद्द-ए-अमल न आने को एहतराम से देखना चाहिए। मैं मीडिया कंट्रोल पर नहीं, बाहमी एहतराम पर यकीन रखता हूँ। अटॉर्नी जनरल से मुकालमे में कहा, आपका खत पढ़ा और आपकी काविश सराहते हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए उमूर खारजा ने अफसर शरीफ कत्ल केस पर इन कैमरा इजलास तलब कर लिया। चेयरमैन कमेटी ने कहा, अफसर शरीफ केस पर कायमा कमेटी को ब्रीफिंग दी जाए। JIT कीनिया, दुबई और पाकिस्तान में होने वाली तहकीकात से आगाह करे। आज होने वाले इजलास के अख्ताम पर इन कैमरा सेशन होगा। पाक बहरिया की कसीरुल मुल्की मशक़े अमन 2023 खत्म। शिमाली बहिरा अरब में इख्तितामी तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ और सर्विसेज चीफ की शिरकत। पाक बहरिया के जहाज पर अमीरुल बहर ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म को अमन मशक़ों से मुतालिक ब्रीफिंग। मशक़ में शरीक बहरी और हवाई जहाजों ने सलामी पेश की। 8वीं कसीरुल मुल्की मैरी टाइम मशक़ें 6 रोज जारी रही। शिमाली वज़ीरिस्तान में CTB की टीम पर हमला नाकाम। दहशतगर्दों की फायरिंग से ज़ेर हिरासत 3 मुलज़मान हलाक, 4 हमला आवर भी मारे गए। 5 से 6 फरार। घात लगाए मुलज़मान ने मीरान शाह से दहशतगर्दों की बंदूक मुंतकली के दौरान साथियों को छुड़ाने के लिए मीर अली बाईपास पर हमला किया। कराची में नाज़िमाबाद से 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। धमाका खेज मवाद बरामद। SSP का कहना है कि गिरफ्तार दहशतगर्द पेशावर से लाया गया धमाका खेज मवाद मुंतकिल कर रहे थे। MNA अली वजीर को सेंट्रल जेल कराची से रिहा कर दिया गया। 2020 में पेशावर से गिरफ्तार किया गया था। सिंध में दर्ज एक मुकदमे में कराची मुंतकिल किया गया था। शहबाज गिल ने अपनी बरियत की दरखास्त मुस्तरद होने का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सेशन कोर्ट का 11 फरवरी का फैसला कलअदम करार देने और ट्रायल कोर्ट में कार्रवाई रोकने की सदा। आजम स्वाति के मुतनाज़ ट्वीट केस में जमानत मनसूखी की दरखास्त पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। अदालत के इस्तफसार पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि चार्ज अभी फ्रेम होना है, मुख्तसर तारीख दे दें, ट्रायल से मुतालिक अदालत को आगाह करूंगा। बगावत का कानून कलअदम करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में दरख्वास्त दायर। वफाकी हुकूमत और चारों सूबाई हुकूमतों को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। ज़ाबिता फौजदारी की शिक 124A, 153A और 500 बुनियादी हुकूक से मुतसादिम है। कानून को सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल करके शहरियों का इस्तेहसाल किया जा रहा है।
आपको ये बताओ, इट इज एट द होम टाइम इट वाज एन अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट। वो बताया है, वो ये बताया है कि वो बच्ची गिरी है, जो बता रहे हैं वो बच्ची गिरी है। हैदराबाद के निजी स्कूल में छठी जमात की तालिबा की मुबैना खुदकुशी, केस की इब्तदाई रिपोर्ट मुकम्मल। रिपोर्ट में वाक़े को स्कूल इंतजामिया की नाअहली और गफलत करार दिया गया। महकमा तालीम सिंध ने स्कूल की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी। स्कूल प्रिंसिपल को मुलाजमत से निकालने का हुक्म। वजीराबाद में दिन दहाड़े गोलियां मारकर 4 नौजवान कत्ल कर दिए गए। 3 अफराद मौके पर दम तोड़ गए। एक अस्पताल पहुंचने के बाद जांबर न हो सका। पुलिस का कहना है देरीना दुश्मनी पर मुल्जिमान ने घात लगाकर फायरिंग की। जाँ बहक नौजवानों की उम्रें 15 से 16 साल के दरमियान है। एक जख्मी जेर इलाज। तुर्की और शाम में हौलनाक ज़लज़ले से अमवात की तादाद 37,000 से तजावुज कर गई। मलबे तले दबे लोगों को बचाने की कोशिशें जारी। कैरमिन मराइश में 198 घंटे बाद 2 भाइयों को रेस्क्यू कर लिया गया। हाफे में 12 साल के बच्चे को मलबे से निकाल लिया गया। 178 घंटे बाद मलबे तले 6 साल की बच्ची भी जिंदा निकल आई। तुर्क सदर का एहलिया के हमरा अस्पताल का दौरा, बच्ची के कान में अजान दी। पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ मिशन जारी। 11 जगहों पर सर्च ऑपरेशन करके मजीद 10 लाशें वरसा के हवाले कर दी। पाक आर्मी सिविल सोसाइटी ज़लज़ला ज़दगान की मदद में पेश 18 टन इमदादी सामान पहुंचा दिया गया। एनडीएमए ने शाम के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए 20 रुकनी मेडिकल और रेस्क्यू टीमें रवाना कर दी। मोदी का ताज्जुब और मुसलमानों पर जुल्म क्यों दिखाया? मोदी सरकार ने बीबीसी को तंग करना शुरू कर दिया। बरतानवी नशरियाती इदारे की जुबाबंदी के लिए ओछे हथकंडे। नई दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के दफातर पर इनकम टैक्स हुकाम के छापे। दस्तावेज के साथ साथ दफ्तर में काम करने वालों के मोबाइल फोन और लैपटॉप साथ ले गए। छापे के दौरान ऑफिस सेल सील कर दिया गया। बाहर पुलिस एहलकार तैनात किए गए। न झुकना कभी न रुकना अभी है मंजिल वो दूर नहीं। HPL PSL सीजन 8 के लिए कराची किंग्स का ऑफिशियल नगमा जारी कर दिया गया। तराने में अली अजमत, आसिम अजहर और रामत अली ने आवाज का जादू जगाया। PSL के रंग हर लम्हा पुरजोश के संग। सबसे बड़े क्रिकेट शो में हंसी का तूफान। आज बनेंगी अदाकारा सनम जंग मेहमान। वसीम बादामी खेलेंगे मासूमाना खेल। चैंपियन कप्तान यूनिस खान और कामरान अकमल देंगे माहिराना राय। आदि और मुस्तफा चौधरी लगाएंगे कॉमेडी का तड़का। आफताबाद में 2.5 फुट के तलहा ने वैलेंटाइन डे को जिंदगी का यादगार दिन बना दिया। लाहौर से 3 फीट की ग्रेजुएट दुल्हन ले आया। पिस्ता कद जोड़े की धूमधाम से शादी, बैंड बाजे के साथ बारात लाई गई। रिश्तेदारों का खूब हल्ला गुल्ला। दुल्हा ने अपनी शादी पर डांस किया और नोट निछावर किए। और हॉलीवुड के नाम पर मुहिम जो माहिर आसार कदीमा इंडियाना जोन्स की धमाकेदार वापसी। मशहूर एक्शन सीरीज इंडियाना जोन्स की 5वीं फिल्म इंडियाना जोन्स एंड द डायल ऑफ डेस्टिनी की नई झलकियां जारी। अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान खलाई दौड़ की तहलका खेज कहानी जल्द पर्दे पर सकेगी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, वापस आएंगे ब्रेक के बाद।